نے صرف اتنا ہی ہمیں کال کر کے بولا ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس کے بعد اچھا میری مدر ان سے لڑنا وغیرہ شروع ہو گیا۔ میرے والد نے فون کیا تو میری مدر نے دوسری شادی کرنی تھی، اوبیسلی میں اپنے فادر کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے مطلب صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، دور کے رشتے دار تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا وہ کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں ہیں، انہوں نے شادی کر دیا۔ انہوں نے صرف اس لالچ کے لیے شادی کی تھی کہ میرے والد صاحب باہر ہیں، پیسے وغیرہ آئیں گے، جہیز وغیرہ آئے گا۔ جب ایسا پہلے تو شروع میں انہیں لگا کہ مطلب آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن جب ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو ان کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں عجیب سی دوائیاں دیتے تھے جس کی وجہ سے بیبی بھی نہیں ہو سکا۔ پرانی بنا کے رکھا، کام کرواتے تھے، اور ایک جب ان کا مطلب پورا نہیں ہوا، لالچی لوگ تھے، تو انہوں نے آپ کو ڈیورس دے دیا۔ تو ابھی والدہ بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، والد بھی باہر بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ابھی کہاں رہ رہی ہیں، کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس ماں باپ ہے، نہ میرے پاس میرا اپنا مطلب شوہر وغیرہ کا گھر ہے، میں مطلب کہیں بھی جا نہیں سکتی۔ بے سہارا ہے اس ٹائم؟ جی بالکل بے سہارا ہوں۔ میں اپنی لائف سے اس قدر تنگ آئی ہوئی ہوں کہ مجھے بہت برے برے خیال آتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا میں کدھر جاؤں، کیا کروں، یا آگے میں کیا کروں گی، یا میرا کیا ہوگا۔ مطلب میری لائف بالکل ختم ہوئی پڑی ہے، میرا اپنا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ عارضی طور پہ تو ادھر رہ لیتی ہوں، لیکن کب تک رہوں گی اس طرح، مجھے نہیں سمجھ آئی میں کیا کروں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی عزت دیتا ہے، سب سے بڑی چیز زندگی میں عزت ہوتی ہے، تو اگر کوئی عزت دیتا ہے تو اس سے بڑی میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مطلب اگر کوئی اچھا پرپوزل ہمارے ادارہ آپ کو دیتا ہے، کوئی اچھا شخص جس کی گارنٹی بھی آپ کو ملتی ہے، تو آپ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ 22 سالہ فاطمہ موجود ہیں، جن کے والد صاحب 10 سال سے باہر ہیں، والدہ نے سیکنڈ میرج کر لی، اور ایک بھائی تھا جس کو والد نے باہر بلا دیا۔ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا جو پاکستان میں دھکے کھا رہی ہیں؟ باپ اچھا خاصا منتھلی انکم کماتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور والدہ نے دوسری شادی کیوں کی، اور ان کی شادی کہاں ہوئی، اور ان کو ڈیورس کیوں ہوئی، یہ سارا ماجرا ہے کیا، انہی کی زبانی بھی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فاطمہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا آپ کی والدہ نے شادی کر لی، آپ کی والدہ بھی زندہ ہیں، والد بھی زندہ ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کے والد نے بھی سیکنڈ میرج کر لی اور آپ کی والدہ نے بھی سیکنڈ میرج کر لی؟ میرے والد کو تقریباً 10 سال باہر گئے تھے کام وغیرہ کے سلسلے میں، تو 10 سال سے وہ ادھر پاکستان واپس نہیں آئے، تو اس کے بعد اچانک ہی انہوں نے فون کر کے بولا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تو میری والدہ پھر کافی ڈپریشن میں چلی گئی، کیونکہ وہ پہلے بھی اکیلی رہتی تھی، مشکل تھا ان کے لیے، پر اس کے بعد جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ ایک انسان کا وہ انتظار کر رہی ہیں اور وہ نہیں آیا، تو اس نے انہیں دھوکہ دیا، تو انہوں نے پھر ضد میں آ کے، پہلے ڈپریشن میں رہی ہیں، پھر ضد میں آ کے دوسری شادی کر دی۔ اچھا فاطمہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب 10 سال سے باہر ہیں، وہ جو 10 سال کا عرصہ گزرا آپ کے گھر میں، آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، وہ ٹائم کیسا تھا؟ وہ ٹائم اوبیسلی گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، جب وہ گھر پہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے وہ خرچہ وغیرہ بھیجتے تھے، گھر اچھے سے چلتا تھا، لیکن ان کے بغیر سب کی لائف ایسے تھی جیسے ادھوری ادھوری ہے، تو مطلب یاد بھی آتی تھی، اور میری مدر کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل تھا ان کے بغیر، کیونکہ ادھر رشتے دار وغیرہ 100 باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ نے کہا نہیں آپ کے والد سے کہ بھی آپ اتنا عرصہ سے باہر ہیں، آپ پاکستان آئے ملنے کے لیے، پتہ سال میں ایک بار آ ہی جاتا ہے؟ وہ انہیں ہم لوگ کہتے ہوتے تھے، پر وہ کہتے تھے کام کا برڈن اتنا ہے نہیں آ سکتا، 100 بہانے کر دیتے تھے، لیکن اچانک سے ہمیں امید نہیں تھی کہ اچانک سے وہ ہمیں یہ کہیں گے کہ میں نے دوسری شادی کر لی۔ مطلب اس کا مطلب تو فاطمہ یہ ہوا کہ آپ کے والد صاحب نے کافی عرصے سے باہر شادی کی ہوئی تھی، لیکن پتہ آپ لوگوں کو اب چلا ہے۔ ہاں جی ایسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے صرف اتنا ہی ہمیں کال کر کے بولا ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس کے بعد میری مدر ان سے لڑنا وغیرہ شروع ہو گئی، تو اس کے بعد اتنی تفصیل سے ان سے بات نہیں ہوئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد نے سیکنڈ میرج کر لی، آپ کی والدہ نے ضد میں آ کے ڈیورس لی، انہوں نے بھی سیکنڈ میرج کر لی، وہ اپنے گھر اگلے گھر چلی گئی، آپ کے والد صاحب باہر ہی رہتے ہیں، باہر سے نہیں آئے، آپ کا جو بڑا بھائی تھا اس کو آپ کے والد صاحب نے باہر بلا لیا۔ آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ ریلیٹیوز میں ہوئی، غیروں میں ہوئی، اور کس نے کی؟
मेरे वालिद ने फ़ोन किया तो मेरी मदर ने दूसरी शादी करनी थी। ऑब्वियसली मैं अपने फ़ादर की ज़िम्मेदारी थी, तो उन्होंने मतलब सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए, फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने ये भी नहीं देखा वो कैसे लोग हैं, कैसे नहीं हैं, उन्होंने शादी कर दी। अच्छा, मतलब आपकी शादी आपके वालिद साहब ने की? हाँ जी, सिर्फ़ एज़ अ फ़ॉर्मेलिटी इंसान होता है कि देखभाल की करता है, पूरा उसका मतलब देखता है कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं देखा, सिर्फ़ जल्दी में अपनी फ़ॉर्मेलिटी पूरी की है। मतलब आपके वालिद साहब ने कहा कि आपका भाई तो बाहर आपके वालिद साहब के पास चला गया, तो आप पाकिस्तान में अकेली थी, तो आपसे जान छुड़ाने के लिए आपकी जल्दी-जल्दी शादी कर दी गई। तो शादी किस तरह की गई? आपको जहेज़ वगैरह दिया गया या कोई नॉर्मली निकाह टाइप? नॉर्मली निकाह टाइप कोई जहेज़ वगैरह हुँ। नहीं दिया गया। अच्छा। अच्छा फ़ातिमा, जब आपकी शादी होगी, आपके वालिद साहब ने चले जैसे भी हुआ अपना फ़र्ज़ अदा करके आपसे जान छुड़ा ली। आपकी वालिदा अपने घर खुश हैं, आपके वालिद बाहर खुश हैं, आपका भाई भी वालिद के साथ बाहर है। तो आपकी लाइफ़ कैसी गुज़री? मेरी लाइफ़ शुरू में तो सब अच्छा गुज़रा था, हुँ, क्योंकि शुरू में तो कोई भी मतलब अपना असल रूप नहीं दिखाता। उन्होंने हुँ, सिर्फ़ इस लालच के लिए शादी की थी कि मेरे वालिद साहब बाहर हैं, हुँ, पैसे वगैरह आएँगे, जहेज़ वगैरह आएगा। जब ठीक है। ऐसा पहले तो शुरू में उन्हें लगा कि मतलब हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता होगा, लेकिन जब ऐसा कुछ भी ना हुआ तो उनका रवैया आहिस्ता-आहिस्ता बदलना शुरू हो गया। मुझे हुँ, मतलब पहले तो सिर्फ़ डाँटते थे, हुँ, काम वग़ैरह ज़्यादा करवाते थे, लेकिन उसके बाद फिर मारना वग़ैरह और मतलब पता नहीं अजीब-सी दवाइयाँ देते थे, जिसकी वज़ह से बेबी भी नहीं हो सका। मतलब आप उनको ये लालच था कि आपके वालिद साहब बाहिर हैं और वो आपका जहेज़ के मद में आपको पैसे वग़ैरह देंगे या आपके ख़ावंद को कारोबार करवा के देंगे, ये लालच था उन्हें। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि तो जब ये चीज़ें आपके वालिद साहब ने नहीं की, ना आपको पीछे से पैसे भिजवाए या उन्हें कारोबार नहीं करवा के दिया, तो फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद यही कि पहले तो आहिस्ता-आहिस्ता रवैया चेंज हुआ, हुँ, फिर उसके बाद ताने भी देना शुरू हो गए कि तुम हुँ, जहेज़ नहीं लेके आई, ये आपने हुँ। तुम्हारे माँ-बाप कैसे हैं? मैं माँ मतलब माँ के बारे में कभी ताने देना, कभी मेरे बाप मतलब के आपको बारे ये में। कहते थे कि वालिद साहब को फ़ोन करो और पैसे मंगवाओ? जी, बिल्कुल, वो ये कहते थे कि मतलब अपने वालिद साहब से बोलो कि पैसे भेजें, ये काम हमें करवा के दें, ये चीज़ हमें भेजें। हुँ, इस तरह वो मुझसे डिमांड करते थे, लेकिन जब उनकी हुँ। डिमांडें पूरी नहीं होती थी, तो वो रवैया बद से बदतरीन होता चला गया। अच्छा फ़ातिमा, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने आपके साथ रवैया ठीक नहीं रखा, एक नौकरानी बना के रखा, काम करवाते थे और एक जब उनका मतलब पूरा नहीं हुआ, लालची लोग थे, तो उन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया। तो अभी वालिदा भी मनाने के लिए तैयार नहीं है, वालिद भी बाहर बैठे हैं, वो भी मनाने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी कहाँ रह रही हैं, कैसे गुज़ारा कर रही हैं? तो जब उधर से डिवोर्स लिया, तो हुँ, उसके बाद मुझे यही था कि हमारा अपना घर है, चलो मैं उधर चली जाऊँगी। तो जब मैं उधर आई, मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब ने वो भी सेल आउट कर दिया। तो अब ठीक मेरे है। पास और कोई जगह थी नहीं, तो ऑब्वियसली मोहल्ले में लोग जानते थे हम हुँ, लोगों को। हुँ, तो हुँ, उधर ही मैंने किसी से रिक्वेस्ट की कि आप लोग मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दें हुँ, और मैं काम वगैरह कर लूँगी। तो ठीक है। उन्होंने सिर्फ़ आर्ज़ी तौर पे मुझे अपने घर में रिहाइश दी है और काम वगैरह वहाँ करती हूँ। लेकिन मैं कब तक ऐसे कर लूँगी? ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास माँ-बाप है, ना मेरे पास मेरा अपना मतलब शौहर वगैरह का घर है। मैं मतलब कहीं भी जा नहीं सकती। बेसहारा है इस टाइम। जी, बिल्कुल बेसहारा हूँ। अच्छा फ़ातिमा जी, बताएँ कि इतनी अच्छी लाइफ़ चल रही थी और मुझे लगता है कि आपके माँ-बाप के झगड़े में या आपके वालिद ने शादी की, सारा एक बसता हुआ घर उजड़ गया। तो अभी आपकी शादी हुई, आपको भी डिवोर्स हो गई, क्या सोचती हैं आगे कैसे गुज़ारा होगा? क्या करेंगी आने वाली लाइफ़ में? मतलब आर्ज़ी तौर पे तो मुझे घर मिला हुआ है, लेकिन हुँ, मैं अपनी लाइफ़ से इस कदर तंग आई हुई हूँ कि मुझे बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं। कुछ हुँ, समझ नहीं आता मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ? हुँ, या आगे मैं क्या करूँगी या मेरा क्या होगा? हुँ। मतलब मेरी लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, मेरा अपना मुझे कोई नज़र नहीं आता। आर्ज़ी तौर पे तो इधर रह लेती हूँ, लेकिन कब तक रहूँगी इस तरह? मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ? अच्छा फ़ातिमा, आप 22 साल आपने अपनी एज बताई है और ये कुछ ज़्यादा एज नहीं है, कोई बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मुश्किल वक़्त के बाद ही अच्छे वक़्त की उम्मीद होती है, अच्छा वक़्त आता है। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें। आपकी वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, ठीक है? हमारे बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो हेल्प भी करते हैं। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा हमारा भाई
ओवरसीज़ भाई या पाकिस्तानी भाई कोई हमसे राब्ता करता है हमारे यूट्यूब चैनल नंबर पे और वो कहता है जी मैं फ़ातिमा को मैं सहारा देने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको छत दूँगा, 2 टाइम का खाना दूँगा, वो इज़्ज़त जो आपका हक बनती थी वो आपको मिले। लेकिन वो डिमांड कर दे जी वो आपसे निकाह करना चाहता है, हलाल तरीके से आपको अपने पास रखना चाहता है। क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर कोई इज़्ज़त इज़्ज़त देता है, सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में इज़्ज़त होती है। हुँ। तो अगर कोई इज़्ज़त देता है तो उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। तो मतलब अगर कोई अच्छा प्रपोज़ल हमारे द्वारा आपको देता है, कोई अच्छा शख़्स जिसकी गारंटी भी आपको मिलती है, तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अक्सर लोग ऐज में थोड़े ज़्यादा होते हैं, उम्र में ज़्यादा होते हैं या अक्सर लोग ऐसे हमसे राब्ता करते हैं जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर बात है ओवरसीज़ लोग होते हैं, अच्छा कमाते हैं, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं और हमारी शरीयत ने भी एक मुसलमान को 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी है। अगर कोई ऐसा शख्स जो दूसरी शादी की ख्वाहिश रखता है, अपनी बीवी से भी इजाज़त ले ले और आपको अलग भी रख सकता हो और आपकी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता हो, तो क्या कहती हैं सेकंड मैरिज कर लेंगी? जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वही बात है जब हमारे इस्लाम ने इजाज़त दी है और दूसरा मुझे अगर वो हुँ, इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त हुँ, से रखता है, तो फिर मुझे इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा कोई आपके होने वाले ख़ावंद में कोई आपको कोई ख्वाहिश करती हो इस तरह का होना चाहिए या कोई डिमांड आपकी हो? नहीं, मेरी डिमांड इस तरह कोई भी नहीं है, बस मेरी यही है कि इज़्ज़त देने वाला हो, हुँ, कल को हुँ, मुझे मेरे घरवालों की वजह से या किसी हुँ, वजह से हुँ, कोई ताना ना दे के तुम्हारे घरवाले या तुम तो हुँ, बेसहारा हो या इस तरह। मतलब लालची ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जी नाज़रीन 22 साला फ़ातिमा की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपने जान ली है। परेशान है रहने के लिए जगह नहीं है, करने के लिए काम नहीं है, कोई ऐसा शख़्स नेक-दिल इंसान जो इनको सहारा दे सके, इनसे निकाह कर सके या कोई इनको कोई काम करवा सके जिससे ये अपना गुज़र-बसर कर सकें। तो नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा उस पे आप राब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।